Hello, welcome back to physics class. Today is lecture number 10, chapter number 4, laws of motion. कल के लेक्चर में हमने देखा कि हाउ द वर्क इज़ डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, और व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सो वी डिस्कस. तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है जिसका वर्क डन जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है whose work done is depend on the path followed, okay, or dissipated path followed. That is the non conservative force. Conservative force में हमने क्या देखा? ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन इन द स्प्रिंग. ऑल दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एयर रेजिस्टेंस, विस्कस ड्रैग, फ्रिक्शनल फोर्स. दिस इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. मतलब जो भी वर्क डन होता है सम एनर्जी गेट लॉस्ट, डिसिपेटेड into the atmosphere to the path. So चलो आज देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. When we draw the graph of force versus displacement, मान लो this is the graph. Force is along y-axis because this is the dependent variable, and displacement which is s along the x-axis. If the graph is straight line, constant force is acting on a body, so work done will be the area enclosed by this rectangle. तो ये जो एरिया है, this area we can directly calculate the work done from 0 to this point, whatever it is, suppose S1. Okay, so 0 to S1 we can find if you take the area, that area will be F into S, which is work done. We can calculate it. Or if the force is decreasing linearly, अगर फोर्स से डिक्रीज हो रहा है, सो टेक दिस पॉइंट, लेट दिस इज S1, लेट दिस इज S2. तो इसका जो वर्क डन होगा दैट विल बी F इंटू S2 माइनस S1. दिस वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड. और तीसरा जो ग्राफ है वी कैन प्लॉट लाइक दिस. इफ द वर्क इज वेरी लीनियरली अगर वेरी हो रहा है, सो हियर द फोर्स इंक्रीजेस एज द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस. So what is the area enclosed by this trapezium? Okay, let this point is S1, let this point is S2, let this force. Okay, यहाँ पे constant force लग रहा है, but it varies linearly, right? यहाँ पे जो variation है वो linearly है. So this can be calculated also. W is equal to F into S2 minus S1. Just area enclosed by this, जो भी एरिया है that area gives the work done. area of trapezium can be the work done. लेकिन अगर if the force varying like this, okay, suppose if I draw, if the force varying, force is not constant, so in that case take this point S1, take this point S2, और x1 भी ले सकते हैं, depends on. Okay, I will take x1 instead of s1. I will take this is x1 and this is x2. Okay, अभी यहाँ पे this is force F. Now here the force is not constant, force is variable, right? So every instant the force changes its magnitude as well as direction also. Okay, so in that case you have to draw the tangent at this point. यहाँ पे tangent निकालना पड़ेगा. So इसका tangent यहाँ पे आएगा, इसका टेंजेंट यहाँ पे आएगा, इसका टेंजेंट यहाँ पे आएगा, इसका टेंजेंट यहाँ पे आएगा, राइट. एंड व्हाट द एंगल इज मेड, दैट एंगल इज थीटा. ओके, सो दिस इज, सो यू हैव टू टेक, इन दैट केस यू हैव टू टेक द component of force in the direction of displacement, and after taking a dot product you will get the work done. Okay, but here to find the total work done, यहाँ पे total work done अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to take the small segment, small element of this core, right, and the length of this path, इसका जो length है that is dx.
ओके, एंड द फोर्स एक्टिंग फ्रॉम दिस, यहाँ से यहाँ तक फोर्स जो लगेगा, दैट फोर्स टू बी कंसिडर एज अ कांस्टेंट फोर्स। कैसा होगा, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ऐसे हमें एज्यूम करना पड़ेगा। देयर इज अ चेंज इन फोर्स बट दैट स्मॉल चेंज इन फोर्स इज नॉट रिकॉर्डेड, राइट? सो वी हैव टू टेक द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट of the body when the force is applied. When we are considering the entire curve, in that case there is a variable force, but when we consider the small element of the displacement, अभी मान लो सपोज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई एम मूविंग दिस मच, कितना चला मैंने यहाँ पे 6 फीट, ओके, लेकिन ये 6 फीट में सपोज इफ आई टेक ओनली 1 स्टेप दिस मच ओनली, तो जो टाइम लगा उसको, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. And what are the force exerted by my muscle? That force to be considered as a constant force. तो तब जाके हम constant force को assume कर सकते हैं, right? And जब भी when we are calculating the work done due to the variable force, we have to take the integral, जो हमने कल पढ़ा integration का बारे में, okay? तो how to find the work done? Work done is equal to integration f into dx. डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू डी एक्स, डी एस भी ले सकते हैं, एस और एक्स वन एंड सेम, इट इज दैट सिम्बॉल इज यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ओके? तो एफ इंटू डी एक्स लिया, बट यहाँ पे कुछ तो इनिशियल पॉइंट होगा 0 to s, 0 to x ले लो, बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ एक्स. सो दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल, इसको क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल. सो दिस इज कॉल्ड एज द वर्क डन. दिस इज यूज वेन एवर वी आर अप्लाइंग द वेरिएबल फोर्स, ओके? तो यहाँ पे अगर लेना है हमको, सो वी कैन फाइंड द स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड देयर बी स्मॉल वर्क डन, तो दैट विल बी डी डब्ल्यू. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ओके, इट इज एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, स्मॉल चेंज इन द कॉन्स्टेंट फोर्स एंड द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जो भी उसका प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट विद द स्मॉल वर्क डन. तो टोटल वर्क डन अगर निकालना है, तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, दैट विल बी डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स. सो दिस इज वे ऑफ कैलकुलेटिंग द वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स, ओके? तो इसका थोड़ा अच्छा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अच्छी तरह, सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया. दिस वॉज जस्ट द जनरल आइडिया अबाउट द वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स, ओके? So give the title, it is a question directly, so that you will find easy to write the answer. Explain the concept of work done by a variable force, okay? This question can ask for 5 marks, okay? So let's draw the diagram first. I should use a black marker so that you can see clearly, right? So here, while plotting a graph, the quantity taken along y-axis is dependent variable, right? And the quantity taken along the x-axis is independent variable. यहाँ पे force is the dependent and the displacement is independent, okay? So here F we are taking along y-axis and the displacement along the, let the force is varying. Now take this point, let this displacement is here x1, displacement of the body it is x2. After some time, यहाँ का जो टाइम होगा मान लो t1, यहाँ का टाइम होगा t2. Now we have to find the work done from this. Let this point is A, let this point is B, okay? So work done during this time interval, right, or during this path. But here the force is not constant, force is variable. So we will take the small element of this curve, okay? And that small element here, if this total is x, this is x1 and this is x2, this is x1,
and this is x2 displacement of the body. But when we are considering this part, this strip, इसको strip बोलते हैं, when we are considering this strip, small strip, this will be dx, right? And what are the area of strip, small strip? That area of the small strip will acting as a small work done. यहाँ पे छोटा सा काम हुआ है, small work done. Okay, let the work done during this strip is dw. यहाँ पे कितना हुआ? dw इतना काम हुआ. लेकिन यहाँ से A to B से, लेकिन फोर्स क्या है? वेरिएबल है. फोर्स इज वैरिंग, नॉट कांस्टेंट, राइट. लेकिन हम वर्क डन कब निकाल सकते हैं? व्हेन देयर इज द कांस्टेंट फोर्स. सो हियर व्हेन वी आर टेकिंग द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस कर्व, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस आर्क, ओके, सो व्हेन देयर इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, राइट. सो इसको जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यहाँ पे जो फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी द एफ, कैपिटल एफ होगा, दैट विल बी कैपिटल एफ. Constant force, it is constant force is acting, constant force is acting. Constant नहीं, but that small change in force cannot be recorded. Change हो रहा है force में, लेकिन वो record नहीं हो रहा है. Understand? When we are considering the small part of the ship, there is a small change in force, but that cannot be recorded clearly. That's why we are going to consider it as a constant force. Okay, so here the body is moving along x axis. यहाँ पे x1 x2 है, तो मतलब क्या है? Body is moving along x axis, right, due to variable force. Now the in the integral form, integral calculus के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? So dw is equal to area of this f into dx, f into dx. But this is the small work done, right? हमको पूरा वर्क डन निकालना है A to B तक, तो वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन टू फाइंड टोटल वर्क डन, टू फाइंड टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B, then we have to take integration. So we must take integration. आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में इंटीग्रल कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. तो इंटीग्रेशन कब लेते हैं? जब छोटे छोटे टुकड़े को एक साथ उनको मिलाना है, राइट. जब अनेक स्टेट में से एक कंट्री बनता है, इंडिया बनता है, हम उसको क्या बोलते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, राइट. नेशनल इंटीग्रेशन. वाई इट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन? कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते, एक ही जगह पे रहते, तो हमारी वो एकात्मता दिखती, इंटीग्रेशन. तो स्मॉल छोटे छोटे राज्य मिलके एक भारत देश बना हमारा, राइट. तो इट इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. महाराष्ट्र इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट. तो वैसे यहाँ पे जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, वो सब टुकड़े मिला के, सब dx, जब डिस्प्लेसमेंट मिला के, ओके, तो एक छोटा जो वर्क, बड़ा जो वर्क डन बनेगा, सो दैट बिग टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो dw है, स्मॉल वर्क डन है, वो छोटे छोटे वर्क डन मिला के एक बड़ा वर्क डन बनेगा, राइट. तो उसके लिए हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. सो दैट इज dw. फाइन. सो पुट द वैल्यू ऑफ dw हियर, इंटीग्रेशन वेक्टर f डॉट dx बार, ओके. और यहाँ पे लिमिट लेंगे. लिमिट हमारा क्या है? x1 टू x2. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है? x1. और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2. यहाँ पे लिमिट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज डेफिनेट इंटीग्रल वेयर द लिमिट्स आर प्रोवाइडेड. सो दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट, बिकॉज वी नीड दिस लोअर एंड अपर लिमिट वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल. एक आपको फोर्स दिया जाएगा, राइट, आउटपुट डिस्टेंस दिया जाएगा, इनिशियल एंड फाइनल, एंड फाइंड द टोटल वर्क डन. तो तब यहाँ पे क्या करना है आपको? फाइनल माइनस इनिशियल होगा वो, जब सॉल्व करोगे तब, राइट. So right hand side is definite integral. Why it is so called definite integral? Because the limit is given x1 to x2. Okay, over limit limits x1 to x2.
So now if the force is not constant, right, if the force is varying, then we have to take the tangent drawn. यहाँ पे अगर मान लो tangent लिया, this is the direction of force, okay, and this will be the displacement. ये displacement होगा. तो ये जो angle है, that angle is suppose theta. If the force is varying, okay, so component of force not in the direction of displacement in this case. So you have to consider that, you have to find the component of force in the direction of displacement so that we can find a work done, right. So here this is ds component and जो भी इस component होगा इसका force का, that will be the force होगा f cos theta, that will be the f cos theta, okay. So let capital F be the force at a point, along the path, and theta be the angle between, force F and displacement ds, okay, at that point, displacement at that point, then how can you find the work done? dw is equal to component of force. अभी यहाँ पे force और displacement का direction same नहीं है, लेकिन when we are calculating the work done due to the force applied on a body, so we need to take the component of force in the direction of displacement. So that time the dw can be calculated f cos theta. Let the f cos theta, what is the f cos theta? Is the component of force in the direction of displacement, f cos theta into displacement ds, okay. So this can be written as, or this is f ds cos theta, this is f ds cos theta. तो ये जो magnitude of scalar product है, this is the magnitude of scalar product. So can we write this? इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? dw is equal to small work done at that instant. This is the instantaneous work done. यहाँ पे ये point पे जो work हो, dw is equal to, this can be written as vector f into ds bar. ओके, यहाँ पे रट्टा मारने का नहीं आपको, ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो स्केलर प्रोडक्ट में उसको फॉर्म में लिख दिया है, आई हैव रिटन इन द स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, बिकॉज कॉस थीटा क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is equal to the product of magnitude of both the vector and cosine of the angle between them. So we can write like this. So here this is the small work done. So total work done W is equal to, अभी टोटल वर्क डन निकालना, अभी यहाँ हमने यहाँ ए पॉइंट का वर्क डन निकाला, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा और वेक्टर एफ डॉट डी एस निकाला, लेकिन द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम x1 टू x2, तो टोटल वर्क डन अगर निकालना है और ये यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, देन इन दैट केस वी नीड टू टेक इंटीग्रेशन. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखिए. सो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फ्रॉम, इट इज़ फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट ए टू बी, राइट, यहाँ पे ए टू बी आएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर एफ डॉट डी एस. ओके, और दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर x1 टू x2 वेक्टर f इंटू डी एस बार, और dx ले लो, यहाँ पे क्या लिया, dx लेकर dx ले लो, टेक दी dx, चलेगा. सो जस्ट टेक द सिंबल प्रॉपरली. ओके, अगर आपने x लिया तो x ले लो, यहाँ पे ds लिया तो ds ले लो. मैंने यहाँ पे ds लिया है तो यू हैव टू टेक ds. ओके, सो x1 टू x2, बट ये इसका फंक्शन होना चाहिए एक्चुअली, इट शुड बी फंक्शन ऑफ, तो यहाँ पे s1 s2 आएगा. ओके, x ही लेंगे, स्मॉल x, आई विल टेक x1, दिस x लेंगे, f and dx, this will be dx. To avoid the confusion here, take x only, f dx cos theta. So this will be x.
क्योंकि ये इसका फंक्शन होना चाहिए। जब भी आप लिमिट ले रहे हो तो द लिमिट जहाँ पे जो x है तो यहाँ पे भी x1 के लिमिट है, डिस्टेंस के यूनिट होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे dt लिया, टाइम लिया, तो यहाँ पे t1 t2 आना चाहिए, टाइम विल बी देयर, देन ओनली इट इज़ एप्लीकेबल। ये आपको याद रखना है। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम होना चाहिए। तो जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करोगे तो दिस कैन बी रिटन एज f कॉन्स्टेंट है, तो दिस कैन बी रिटन एज x2 माइनस x1, ये आता है बाद में। आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन you will get the work done in this form, f into x2 minus x1, upper limit minus lower limit. This is the way of finding the work done. वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। So I hope everyone understood this, right? तो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, इसलिए हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है, राइट? अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली फाइंड दी एफ इंटू, अगर मान लो फोर्स वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट फोर्स है, राइट? अगर कर्व इज लीनियर और पासिंग थ्रू ओरिजिन जा रहा है या लीनियरली डाउनवर्ड आ रहा है, तो भी हम डायरेक्टली एरिया ऑफ द जो भी होगा एरिया ऑफ दैट कर्व विल बी द वर्क डन बाय द बॉडी, हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसके एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट वी विल सॉल्व, सो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस। सो एग्जाम्पल नंबर 4.4 है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 55 एंड विच इज़ सॉल्व न्यूमेरिकल है, ओके, टेक्स्ट बुक में। तो मैं डायरेक्ट अभी आप देख लो PDF फाइल, और मैं डायरेक्ट गिवन लिखता हूँ। ओवर अ गिवन रीजन अ फोर्स इन न्यूटन वैरीज, तो फोर्स दिया है, फोर्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। इन दिस रीजन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस फ्रॉम, तो इनिशियल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस फ्रॉम, इनिशियल पोजिशन इज 20 सेंटीमीटर एंड फाइनल पोजिशन दिया है x2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। बाय द गिवन फोर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके, calculate the amount of work done, amount of work done। तो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड है, राइट? तो लेट्स राइट द डेफिनेशन, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू dx, ओके, F इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 लिया है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया, dx लिया है। अगर s1 s2 है तो देयर विल बी ds, समझ में आ रहा है? वैसे इंटीग्रेशन लेना आपको। नाउ सो यहाँ पे लिमिट होगा, दिस इज x1, दिस इज x2। लेट अस सब्स्टिट्यूट वैल्यू। अभी देखो बच्चों, जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो भी है, राइट? तो यहाँ पे जो लिमिट दिया है, दैट इज लिमिट इज गिवन इन सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स जो दिया है न्यूटन में दिया है, दिस फोर्स गिवन इन न्यूटन। कोई तालमेल नहीं हो रहा है। एक तो आपको फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करो, या डिस्प्लेसमेंट जो दिया है, जो लिमिट दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो आई विल प्रेफर टू कन्वर्ट दिस डिस्प्लेसमेंट इनटू मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। So this will be 0.2 meter and this will be 0.4 meter। ये कन्वर्जन अगर आपने नहीं किया तो आपका आंसर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? सो लेट अस सब्स्टिट्यूट। दिस इज x1 इज 0.2 मीटर, 0.4 फोर्स डालते अभी, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 into dx। okay, now to find the integration, यहाँ पे जो भी न्यूमेरल कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालने का है। अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें, देयर इज मैथमेटिक्स लिटिल, तो सबको इंडिविजुअल इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा। तो देखते कैसे लिखते, 3 इंटू इंटीग्रेशन 0.2
to 0.4 लिमिट एक्स क्यूब, ये डी एक्स सबको मल्टीप्लाई होगा इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स वेर द लिमिट 0.2 to 0.4 प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स 0.2 to 0.4। बच्चे क्या करते, बहुत गए में उसको स्टेप को स्किप कर देते। डोंट स्किप द स्टेप्स, राइट। इंडिविजुअल उसको सेपरेट करो, हमेशा इसको ऐसे ही लिखने का, देन ओनली यू विल गेट अ करेक्ट आंसर। अभी देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करना हमको, 3 वैसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन विल बी, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी नो द इंटीग्रेशन। अभी मैं ज़रा जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स कैन बी रिटर्न एज एक्स रेज टू एन प्लस 1, जो पावर है उसका एक ऐड करने का, डिवाइड बाय n प्लस 1, डिवाइड बाय n प्लस 1। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। तो लेट्स राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक्स रेज टू क्यूब है, तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1, तो एक्स रेज टू 4 सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, वो डेरिवेटिव में to 4 स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस इज स्क्वायर, बराबर है स्क्वायर 2x + 1 बराबर है, वी आर राइट। स्क्वायर दिस इज स्क्वायर, ओके स्क्वायर so it is square here, so same formula is here, so this can be written as x cube, x square का x cube upon 3 minus 2 into, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे लिमिट होगा, लिमिट 0.2 to 0.4, 2 into x square upon 2, 0.2 to 0.4 plus here the integration will be x, dx का इंटीग्रेशन क्या है। एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव टर्म है, जो डी है ना, वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx है सिर्फ, तो ये इंटीग्रेशन और डी, ये दोनों को एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रल रिएक्शन। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। मतलब एसिड में अगर बेस डाल दोगे आप तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, और बचा क्या यहाँ पे सिर्फ x, तो यहाँ पे x आएगा। सो दिस इज 0.2 to 0.4, फाइन। अभी यहाँ पे 3 3 कट कर देते, 2 2 कट हो जाएगा, तो व्हाट विल गेट आंसर, दिस विल बी एक्स क्यूब लिमिट 0.2 to 0.4 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिमिट 0.2 0.4 प्लस एक्स 0.2 to 0.4। Let us solve this properly. Then work done W is equal to, अभी यहाँ पे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पहले क्या करना है, अपर लिमिट लेना है 0.4 माइनस लोअर लिमिट, ओके। सो दिस कैन बी रिटर्न एज 0.4 का ब्रैकेट का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब, राइट, माइनस 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर प्लस थर्ड ब्रैकेट 0.4 माइनस 0.2, ओके। देन टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 का क्यूब कितना है, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, सो दिस विल बी
0.064 इसका क्यूब आएगा माइनस 0.08, 2 का क्यूब कितना है 0.08 और एक जीरो आएगा 08, ओके, माइनस 4 का स्क्वायर 0.16 0.16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 0.04, ओके, प्लस 0.4 माइनस ये डायरेक्ट आएगा, इसका सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट आएगा, दिस विल बी प्लस 0.2। अभी इसका सब्ट्रैक्शन लिख लेते साइड में, 0.064 माइनस 0.008, 14 में से 8 गए 6, ओके, देन इसका लेंगे 0.16 माइनस 2, सो 0.056 माइनस 0.12 प्लस 0.2, इसका और इसका एडिशन कितना होगा 0.256 माइनस 0.120, okay, so it is 0.136, correct, so 0.136 joule. So this is the answer, this is the work done due to this. Okay, now the next is work energy theorem. अभी हमको प्रूव करना है work energy theorem. So next is work energy theorem. State and explain. State and explain एनर्जी थ्योरम. पहले हम उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी पार्ट. ओके, देखो बच्चों यहाँ पे अगर इफ आई वांट टू शो द डेमोन्स्ट्रेशन, व्हेन वी थ्रो द बॉडी वर्टिकली अप, ऊपर फेंका, राइट, बॉडी गोज अप, तो यहाँ पे जो वर्क डन अगेंस्ट दी फोर्स हो रहा है, व्हेन द वर्क इज डन अगेंस्ट दी फोर्स, अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जा रहा है बट द बॉडी इज मूविंग अप, तो वर्क डन अगेंस्ट दी फोर्स विल बी द, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट, एंड दैट विल बी नेगेटिव. व्हाई इट इज नेगेटिव? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव है. एंड व्हेन द बॉडी रिलीज फ्रॉम सर्टन हाइट, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, सो दिस वर्क डन, दिस पोटेंशियल एनर्जी एंटायर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इफ वी निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस. यहाँ पे तो मतलब क्या हुआ कि जो भी वर्क डन हुआ है दैट वर्क डन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और व्हेन वी थ्रो अप द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, वाइस वर्सा. सो दिस इज व्हाट द वर्क एनर्जी थ्योरम. So let's write the statement here. Statement: when a work done on a body, when work done
on a body, work done on a body changes only speed of the body, okay, the work done by the net force, work done by the net force यानी कौन सा होगा यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. मतलब नेट वर्क डन W इज इक्वल टू डेल्टा के ई मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ओके, हमको प्रूव क्या करना है, W इज इक्वल टू 1/2mv² माइनस 1/2mu². ये प्रूव करना है हमको. वी हैव टू प्रूव दिस. ये इक्वेशन लाना है because this is the change in kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy, or energy converted into work, and that work done is stored in the form of potential energy. Is that clear? So if there is a positive work and negative work, तो positive work कब होगा, positive work is said to be done, positive work will be there if the component of force is in the direction of displacement, right? That is possible component of force if component of force is in the direction of displacement, तब पॉजिटिव फोर्स होगा. और नेगेटिव वर्क कब होगा, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज अपोजिट, राइट, टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और जीरो वर्क कब होगा, फिर जीरो वर्क जब होगा इफ देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the direction of displacement. वो भी लिख लेते हैं. So negative work if component of force is opposite to that of displacement, component of force is opposite to that of displacement. And zero work कब होगा, zero work or no work if there is no component of force along the direction of displacement. मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होगा, तो मतलब कैसा होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर, राइट. ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स कॉम्पोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, राइट. सो दैट टाइम नो वर्क इज डन, तब कुछ काम नहीं होगा. इसका मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको, तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया. सपोज ये हमारी अर्थ है, दिस इज अर्थ, और ये सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट. इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, गोल घूम रहा है, राइट. एंड दिस इज व्हाट द रेडियस, ये हमारी रेडियस है. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी हियर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. और ये फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट एट द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड ये क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ds. ओके, तो यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा, राइट, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हमारा फॉर्मूला क्या, वर्क डन का W इज इक्वल टू F डॉट ds, और विच कैन बी रिटन एज F ds cos थीटा, right. So F ds
इंटू यहाँ पे एंगल कितना है cos 90, बट cos 90 इज 0, तो द एंटायर वर्क डन इज 0. बराबर. तो यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं सीईटी के लिए. व्हेन द सैटेलाइट कंप्लीटली रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और इट कंप्लीट वन राउंड, जब पूरा राउंड कंप्लीट करेगा तो भी तब वर्क डन 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है. और व्हाट इज द वर्क डन बाय द सैटेलाइट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द सैटेलाइट, ओके, एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पे अगर सैटेलाइट का वर्क डन निकालना है व्हेन इट रिवॉल्व्स. भी बच्चे क्या बोलते हैं, सर वो तो घूम रहा है तो मोशन में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज देयर, बट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वर्क डन इज 0, राइट. तो कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही, एनी बॉडी परफॉर्मिंग यूसीएम और सर्कुलर पाथ में घूम रही, एट दैट टाइम द वर्क इज डन, जो भी वर्क इज सेट टू बी 0 वर्क डन. तब क्या लेना है आपको, आंसर क्या देना है, 0 वर्क डन. वाई, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट and direction of force they are not in the same direction, they are perpendicular to each other. And mathematically FDS cos theta के फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो वर्क डन है वो 0 आ रहा है. अंडरस्टैंड, ओके. मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, when the force is applied in the direction of displacement. अगर फोर्स कुछ इंक्लाइन कर रहा है तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तब कम वर्क डन होगा. ओके, सो इन दिस वे यू कैन राइट. जब भी वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, तो अब व्हाट अबाउट द स्पीड क्या होगा, स्पीड इंक्रीजेस. सो पॉजिटिव वर्क जब होगा, पॉजिटिव वर्क दैट टाइम स्पीड इंक्रीजेस एंड नेगेटिव वर्क स्पीड डिक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, राइट. यहाँ पे नेगेटिव वर्क मतलब जो फ्रिक्शनल ब्रेक लगाते तो फ्रिक्शन की वजह से स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव. ओके, तो हियर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर दैन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस दैन initial kinetic energy. So just note down all these points for better understanding. So let's prove this theorem. अभी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, जो उसका डेरिवेशन है, जो प्रूव है, 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता, 2 मार्क के लिए वी कैन डिराइव दैट एक्सप्रेशन. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सो क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट लिख लेंगे, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. क्वेश्चन, प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम for a constant conservative force, force must be conservative, right. 2 भाग के लिए पूछा जा सकता है. Now let's consider a particle, or rigid body having mass m, small m, इनिशियल स्पीड कितना है उसका, स्मॉल u, मूविंग विथ इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड स्मॉल u मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर टाइम टी टाइप के बाद, ओके, और फाइनल वेलोसिटी विल बी v. ओके, वेक्टर u एंड वेक्टर u.
वेक्टर यू इज इनिशियल स्पीड, वेक्टर वी इज फाइनल स्पीड. अगर वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है तो डेफिनेटली देयर इज एन एक्सेलरेशन. ओके, सो द नेट constant, applying the net constant force. Okay, if a net constant force vector f, the force f acts on a particle, the constant acceleration of the particle, the constant acceleration of the particle, constant acceleration, vector a can be written as, what is the Newton's second law? Newton's second law is vector f is equal to mass into vector a. That is the Newton's second law. तो वो फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर f डिवाइड बाय मास. इट इज इक्वेशन 1. इसको इक्वेशन 1 देंगे, राइट. सो नाउ एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम u to v, ओके, इन द डिस्प्लेसमेंट s, जब वेलोसिटी चेंज हो रही u to v तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वेक्टर s. ओके, सो एज वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम वेक्टर u to वेक्टर v, ओके, थ्रू डिस्प्लेसमेंट s. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कितना हुआ, वेक्टर s. सो by using the third kinematic equation, क्या है बच्चों, याद आ रहा है, मोशन इन अ प्लेन में हमने वन डायमेंशन मोशन में सब इक्वेशन डिराइव किया है, थोड़ा याद करो. सो द थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डॉट वेक्टर s 2as. ओके, द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू वेक्टर F इंटू S. ओके, लेकिन F क्या है, F इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू S. सो हियर just substitute the value of from this equation 1 and this is equation 2. Okay, so from equation 2 what we can write, equation 2 vector a dot vector s is equal to v square minus u square upon 2, right. तो ये जो वैल्यू a dot s का ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we will get work done is equal to mass into v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2. ओके, बहुत सिंपल है. क्या क्या मैंने यहाँ पे, ये जो यहाँ पे था वो इक्वेशन में इसका वैल्यू एस का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सो वी गॉट दिस. सो वर्क डन इज इक्वल टू, ये दो बाहर आ जाएगा, 1/2 मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर. व्हाट इज दिस, दिस इज फाइनल kinetic energy minus initial kinetic energy. Okay, so this can be written as change in kinetic energy. So this is the work done. So work done मतलब यहाँ पे potential energy होगी, जो work done वहाँ पे stored हुआ है, that work done converted into kinetic energy when it's come down. जब उसको ऊपर फेंका तो kinetic energy convert to work done, vice versa. So there is a conversion of one form of energy into another form, right. जब भी in case of conservative force, okay, now see when the ball thrown vertically up, right, जब ऊपर फेंकोगे तो work done against the force, that work done stored in the form of potential energy, but when the ball released, that entire potential energy converted into kinetic energy. This is what happened here. Okay, तो work done मतलब potential energy converted into change in kinetic energy. So this is called as work energy theorem. इसी को हम क्या बोलते हैं, work energy theorem. अगर इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है तो इसके इंटीग्रल फॉर्म W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर F डॉट ds, ऊपर लिया ना मैंने इंटीग्रेशन ये वाला, दिस वन, ओके, F इंटू ds. दिस कैन बी रिटन एज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर विच इज इक्वल टू change in kinetic energy.
This is possible, this is applicable when the conservative force is applied. ओके, अभी हमको वर्क डन निकालना है बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स. So next question is how the work energy theorem is modified. How the work energy theorem. See why it is called work energy, work done, or energy मतलब kinetic energy. Okay, theorem is modified in the presence of non-conservative force. Non-conservative force मतलब the force in which the work is done by the which is independent of the path followed. Sorry, depend on the path followed. मतलब जो भी पाथ है उसको डिपेंड करता है. डिसिपेटेड पाथ से जो वर्क डन होगा और उसके लिए जो फोर्स लगेगा दैट विल बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. Right? Okay. So this work done due to the non-conservative force depends on the particular path. Okay, during displacement. So work done due to non-conservative force depends upon the path followed or particular path, depend upon the particular path take during a displacement. Okay. जैसे अभी देखो यहाँ पे when the ball is released from certain height, राइट. अभी यहाँ पे डिस्टेंस कम है लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और लॉन्ग डिस्टेंस से अब जब करोगे फेंकोगे तो उसको थोड़ा अपोजिशन मिलेगा. एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग, राइट. या व्हेन द बॉडी इज लिफ्टेड टू द ओवर द किलोमीटर तो तब ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, विल टू गेट वेरी, तो चेंज हो जाएगा, राइट. तो व्हेन द बॉडी इज थ्रोन released from certain height, so due to the air drag or viscous drag, so what is the work done, यहाँ पे जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी, राइट, 100 जूल. तो पूरा 100 जूल जो पोटेंशियल एनर्जी पूरा 100 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका स्पीड बढ़ते जाएगा और एज द स्पीड इंक्रीजेस तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, राइट. तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा, बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स है दे आर कोलाइडिंग विद दिस बॉडी, फॉलिंग बॉडी, राइट. तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा या हीट भी प्रोड्यूस होगी. दैट हीट गेट डिसिपेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट. सो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ वर्क डन, देयर इज अ लॉस ऑफ वर्क डन व्हेन इट इज एट अ हाइट. तो ये जो वर्क डन होगा दैट इज द ड्यू टू द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज द एयर ड्रैग और विस्कस ड्रैग, राइट. तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन होगा दैट टोटल वर्क डन विल बी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स WC stands for the work done due to conservative force plus work done due to non conservative force. यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज द WC is work done due to conservative force. और what is WNC is work done due to non-conservative force. Okay, so this is called as a
Now by the work energy theorem, हमारा work energy theorem क्या बोल रहा है? The work energy theorem says that work energy by the work energy theorem work energy theorem W is equal to change in kinetic energy. अभी हमने प्रूव किया W, that work done is equal to change in kinetic energy. Okay, and work done by the conservative force can be written as work done by conservative force. Conservative force against the work done against the force. Okay, work done against the force. ऊपर फेंका मैंने, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती? नेगेटिव होती. ओके, सो दैट इज W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा PE, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स WC. दिस इज टोटल वर्क डन. ओके, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम. देन WNC, अभी ये फॉर्मूला लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 work done due to non-conservative force. Work done due to non-conservative force क्या लिख सकते हैं? WNC is equal to W minus WC. Okay, which can be written as W minus WC. लेकिन W कितना है? As per the work energy theorem, W is equal to delta KE minus WC कितना है? Change in potential energy, लेकिन वो नेगेटिव है, माइनस डेल्टा PE. ओके, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बच्चों? डेल्टा KE प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट वी कॉल दिस? सम ऑफ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, विच इज टोटल एनर्जी. दिस इज टोटल एनर्जी, and this total energy can be written as delta E simply. This is delta E, and this is what? The work done due to non-conservative force, and hence we can prove this. Okay, हम उसको प्रूव कर सकते हैं. चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी. सो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में रखा तो भी हो वही आ रहा है, हम प्रूव कर सकते हैं. राइट, बाय यूजिंग. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दिया है. वर्क एंड एनर्जी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. वर्क एनर्जी दोनों एक कॉइन के दोनों साइड से. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. राइट, अभी देखो यहाँ पे जब व्हेन वी थ्रो द बॉल अप, ओके, तो क्या होगा? काइनेटिक, अभी मैंने कुछ इनिशियल स्पीड दिया है. राइट, इनिशियल स्पीड यू दिया है, तो मतलब इट पजेस काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. और व्हेन द बॉल रिलीज, यहाँ पे बॉल इनिशियल एट रेस्ट. राइट, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0. तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. व्हेन आई रिलीज द बॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट, इट कम डाउन. राइट, सो हियर वर्क कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट टू वर्क. ओके, द एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. सो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर बॉडी. बाकी जो डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स थोड़ा शॉर्ट में कर लेते. कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स इन विच द वर्क डन जो भी हो रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो भी वर्क डन हो रहा है, इन दैट केस वी आर कंसिडरिंग द पाथ फॉलोड, कि कौन से रास्ते से जा रहा है, रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्या क्या उसको मुसीबतें आ रही. राइट, तो वो भी कंसिडर करना पड़ेगा. राइट, जैसे मैं अभी बताया व्हेन द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो बीच में एयर ड्रैग के वजह से वो धीरे धीरे आएगा. मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी था 100 जूल, तो वो 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी नॉट एंटायरली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. द पार्ट ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक प्लस साउंड प्लस हीट प्लस और कौन सा एनर्जी रहा? साउंड, हीट और सम एनर्जी गेट. ओके, now light energy. Right, then the second point, the जो in case of conservative force जो भी work done हो रहा है, that work done is stored in the form of potential energy in case of conservative force. अभी देखो यहाँ पे जो gravitational force है, the gravitational force is conservative force, मतलब यहाँ पे against the force काम कर रहा है. The body is moving against the conservative force.
and that work done is stored in the form of potential energy. In case of non-conservative force, the energy get lost, okay, and cannot be converted into useful work. जो energy loss होगी जो हवा में चलेगी, dissipate into the air. Third point जो है, in the third point, here as the conservative force decreases the potential energy of the body but the total mechanical energy, right? So in case of work done on a body by conservative force, work done on a body by conservative force, तो क्या हो रहा है? See, when I release the body, तो यहाँ पे potential energy decreases. यहाँ पे क्या हो रही? Potential energy decreases. But the total mechanical energy जो total mechanical energy is conserved. Total mechanical energy is conserved. But in case of non-conservative force, the total mechanical energy is not conserved. The part of energy get lost. Okay. So dear, this is all about the work energy theorem. In the next class, 11th lecture, we will be having the numerical based on that. उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझ लेते, पावर. ओके, लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय पावर. Mechanical power, it is mechanical power, not electrical power, mechanical power. To understand the mechanical power, मान लो एक staircase है, staircase है, okay, that this displacement is something 10 meter, okay, and this is what यहाँ पे ये कम होगा ना, this will be 8 meter, sorry 7 meter something else. So when the two people, एक old man जा रहा है, old man and young boy climbing the staircase, they are climbing the staircase, okay. तो इसमें young boy will reach at the highest point early, young boy जल्दी reach होगा, whereas old man will go slowly, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन है W है, that is mgh, जो वर्क डन है mgh will be different or same. वर्क डन दोनों ने जो किया वो सेम है, अलग है, इट इज सेम, राइट. कोई भी अगर बिल्डिंग चल रहा है, 50 स्टेप चल रहा है, छोटा लड़का है, यंग बॉय है, वो जल्दी फटाफट दौड़ के ऊपर चढ़ेगा 5वें माले पे. लेकिन वही 5वें माले पे अगर 5th फ्लोर पे अगर जाना है तो बुरा आदमी क्या, वो धीरे धीरे जाएगा. लेकिन दोनों ने जो काम किया है वो काम सेम है. द वर्क डन बाय बोथ द पीपल, यंग बॉय एज वेल एज ओल्ड मैन, इज सेम, बिकॉज इट इज पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन मतलब क्या है, जो भी ऊपर चढ़ा है वर्क डन सेम है, mgh, राइट. व्हाट अबाउट टाइमिंग? The time taken by the young boy is less as compared to the time taken by the old man. So here power is defined as mechanical power. It is not electrical power. Mechanical power is defined as rate at which work is done. Work is done. कितने समय में कितना काम किया है. जो जल्दी टाइम, जो कम समय लेगा उसका पावर ज़्यादा, जो ज़्यादा समय लेगा उसका पावर कम. ओके, सो P कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. यहाँ पे टाइम में दैट इज वर्क डन. सो दिस कैन बी रिटन एज W अपॉन T. W क्या है, वर्क डन क्या है, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू S अपॉन T, राइट. सो कितना फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगाया जो ऊपर चढ़ने के लिए, दैट इज mg. हाइट s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h अपॉन t. ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन द SI यूनिट ऑफ पावर? द SI यूनिट ऑफ पावर इज वैट. पावर किस में मेजर करते हैं, वो जेम्स वैट जो था साइंटिस्ट, उसने एक बार पानी गर्म किया, हीट, ओके,
तो क्या किया उसने, जब भी वो पानी गर्म कर रहा था ऊपर उसने एक लीड लगा दिया बर्तन के ऊपर और छोड़ दिया कुछ समय के बाद में क्या हुआ, दैट लीड जो है वो बाहर आ गया। वो लगा कि अरे कैसे होगा, इंस्टेड दैट ही हैज़ इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, राइट। तो जो स्टीम है तो उसने उसको यूनिट दे दिया उसके ऑनर में, वैट, राइट। सो P इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर is equal to SI unit of work, SI unit of work divided by SI unit of time, SI unit of time। तो SI unit of work क्या है, जूल, SI unit of time second, okay, and joule per second is watt। So let us define 1 watt power. 1 watt power is that power when 1 joule of work is done, 1 joule of work is done in 1 second। जब 1 सेकेंड में 1 जूल इतना काम होगा उस टाइम पे वो बॉडी की जो पावर होगी, द पावर ऑफ दैट बॉडी विल बी 1 watt। ओके, सो 1 किलोवाट क्या होगा, 1 किलोवाट विल बी 1000 watt। ओके, और 1 मेगावाट कितना होगा, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻² और 1000 किलोवाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट एंड 1000 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻6 वैट। ओके, वैट का और एक यूनिट है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जो है जो मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है, जो हम पानी ड्रॉ करने के लिए जो मोटर यूज करते हैं खेत में, सो दैट मोटर इज उसका जो पावर होता है वो हॉर्स पावर में होता है। ओके, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट्स। 746 वैट्स इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पावर। ओके, तो इसका डायमेंशन वगैरह आप फाइंड कर सकते। तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या आएगा, our dimension of P is equal to dimension of work, dimension of time. We know the dimension of work, m⁻⁴, l⁻², t⁻⁻² divided by time, t⁻⁴। तो रिजल्टेंट डायमेंशन क्या आएगा, आने वाला डायमेंशन विल बी m⁻⁴, l⁻², t⁻²। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आएगा ना, इसलिए हमको सॉल्व करना है, राइट, पावर का। अब यहाँ पे अगर मास दिया है तो मास कैन बी राइट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर टैंक है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इंटू एच अपॉन टी। तो ये भी एक फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इफ द मास ऑफ द लिक्विड नॉट गिवन, दे हैव गिवन द वॉल्यूम और डेंसिटी पता है, तो वी कैन फाइंड द पावर। ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट टाइम वी विल हैव द न्यूमेरिकल।